In this lecture number 11, the presentation scheme is, there is a quick review of the lecture 10 will be there. Discussion on the quiz based on the FEM stress analysis. This quiz has been played by you on yesterday. There were how many questions? 30 questions were there. So we will discuss this quiz question by question. And after that, we will study the global stiffness matrix. We will make the global stiffness matrix using the octave. We will take a test case example of spring assemblies. Then we will do the force analysis on that spring assemblies. We will also do the displacement analysis. We will solve the test case example with the concept of FEM, finite element method. And we will also verify the equilibrium of the spring model. Practical sessions with octave will be in parallel to parallel. And we will provide you the last assignment of this course, that is assignment number 6 today. So this is the scheme. So let first me take a quick review of lecture 10. So in the lecture 10, we have played a quiz on the finite element method or finite element analysis. Or we discussed the one-dimensional finite element. And a one-dimensional finite element is having node 1 and node 2. Two-dimensional finite elements are maybe triangular, maybe rectangular, like this, and three-dimensional finite element may be. So elemental equations. Equation for the element we have find the local stiffness matrix as we have derived that it is K minus K minus K and K. So this is the stiffness matrix for the local element. Discussion on how to submit the assignment in Google form. ये हमने कल डिस्कस किया था कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है ना. एक सिंगल फाइल बनानी है PDF, उसके अंदर कोडिंग, फिगर आउटपुट और कमांड विंडो आउटपुट. All three things must be there in that single file. Practical sessions with octave 6.3. So review is now complete. So I am now taking the second point, that is discussion on the quiz based on the FEM stress analysis. So I am sharing you the quiz. So I'm sharing you the quiz. Let me share the quiz first. Just please tell me, क्या आपको क्विज विजिबल है स्क्रीन पर? Please inform me that the question is visible to you. Question 1 of the quiz. Yes, sir. The question 1 is visible to you. Yes, sir. Okay. So in the quiz, है ना, बहुत जल्दी इसको क्विक रिव्यू करेंगे. जहां आपको किसी क्वेश्चन करना हो तो आप बता सकते हैं, है ना. So in this question, stress analysis is useful for. क्या क्या ऑप्शन आएगा इसमें बताओ जरा. सर आपका क्या आंसर होना चाहिए? सर टेस्टिंग प्रायर टू मैन्युफैक्चरिंग and improving the design. Yes sir, both of the answers are right. है ना, ये दोनों ही आंसर सही होने चाहिए. तो मैं 100 आंसर पर क्लिक करता हूँ, ये दोनों सही होने चाहिए. यस, बोथ आर करेक्ट, है ना. ओके. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. Yes sir, it can withstand 7 kg load. ओके, है ना. तो ये आपको कैसे पता चला कि ये 7 kg लोड बियर कर सकता है? बताइए, एक्सप्लेन करिए. Is this bracket capable of withstanding the stress induced in 7 kg load?
हाँ बताओ कैसे पता लगा आपको? यस सही बताया आपने, पर आपको ये पता कैसे लगा ये बताइए। सर इधर आप अगर हम बाहर देखेंगे हाँ जिसमें ब्लू कलर जो 8+ दिखा रहा है, हाँ तो वो सेफ्टी जोन है जिसमें हम 7 kg भी ब्लू जोन में आ रहा है। ओके सेफ्टी फैक्टर पे आप देख सकते हैं अगर, तो हाँ हाँ वो तो अगर 7 kg इसमें है जोन में ब्लू में, तो फिर हम आराम से इसको कह सकते हैं सर। वेरी गुड है ना, सही है। ब्लू जोन होने की वजह से इट इज सेफ। और उधर भी बता रहा है सर मैक्स 15 kg, तो 15 से नीचे ही है 7। यस वेरी गुड, तो आंसर इज द ब्रैकेट कैन विथस्टैंड 7 kg लोड। चलिए इसका आंसर बताइए। सर हाईएस्ट रेड जोन है जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ले रहा बिल्कुल, है, हाँ बिल्कुल सही है ना, रेड बाहर बिल्कुल। से ही पता चल रहा है। हाँ कलर से मतलब रेड कलर ये बताता है एनसिस में या किसी भी एफईएम सॉफ्टवेयर में, इट इज हाईली स्ट्रेस जोन, है ना। रेड कलर इज द हाईली स्ट्रेस जोन, सो आंसर इज रेड। तो सही है आपका। इसमें बताइए आपने ये साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट हैं ये फिगर में? सर पहले तो मुझे लगा था वॉन माउसेस है क्योंकि माउस बना था, पर बाद में मालूम पड़ा वॉन मिसेस है। कौन कौन माइसेस हैं? MISES, यस सर। हाँ MISES यही स्पेलिंग है इनकी, वॉन माइसेस। तो इन्होंने सेलर थ्योरीज वगैरह दी हुई हैं, जैसे डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, है ना। ये सर पढ़ाई नहीं मैंने कभी। हाँ ये मतलब काफी काम है इनका, स्ट्रेस एनालिसिस में काफी वर्क है इनका। सो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस will yield the fraction is known as von Mises. Von Mises. Yes, so answer is B. Correct. Next question. What is the name of the criteria that Constraints. it needs to meet? Constraints. Constraints है ना, है ना। कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, तो मान लीजिए कि मुझे कोई कनेक्टिंग रॉड डिजाइन करनी है, कोई पिस्टन डिजाइन करना है, कोई इंजन डिजाइन करना है, तो अल्टीमेटली मेरे पास कुछ बाउंडेशन होती है ना, कि मुझे कनेक्टिंग रॉड इतने रुपीज में बनानी है, तो बजट की लिमिटेशंस होती है ना। कुछ बजट की लिमिटेशन बाउंडेशंस होती हैं, कुछ स्पेस की बाउंडेशन होती है ना, कि मुझे कनेक्टिंग रॉड का लेंथ इतने से ज्यादा नहीं रखना है ना, क्योंकि इतने से ज्यादा लेंथ होने पे वो फिट नहीं होगा। So they are foundation for the length sometimes, they are foundation for the volume sometimes. So there are certain conditions which has to be taken care of by the designer. So those conditions are known as constraints, foundations. So answer is C. So and now moving to the next question. What is the first step of the finite element method? Discretization. Discretization है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट। What is a local coordinate system? सर जो एलिमेंट है वो मास्टर एलिमेंट बनता है। बिल्कुल सही है ना, so the answer correct. Finite element method formulation of the problem. सर अलजेब्रिक इक्वेशन मिलती है हमेशा। Algebraic equation सही है, so answer is algebraic equation. Very nice. FEM gives accurate representation of. सर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। सर मुझे इसमें डाउट था सर, मैंने रियल एंड कॉम्प्लेक्स किया था एक्चुअली सर, मेरा फोन स्विच ऑफ हो रहा था बार बार, मैं डेंटिस्ट के यहाँ था तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था सर, ये बता दीजिएगा। हाँ वैसे आंसर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। जब मैं लेक्चर ले रहा था तो मैंने बताया था कि एनालिटिकल मेथड fails when there is a complex geometry or complex loading. So FEM is can give accurate representation to complex geometry. So answer is C. Finite element method also called. So और किस नाम से जानते हैं? अब इसमें मुझे डाउट था सर, अब ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस इसका आंसर है, पर लेकिन फाइनाइट एलिमेंट मेथड का दूसरा नाम थोड़ी ना सर, ये तो दो अलग अलग चीजें हैं। हमने पढ़ी थी FEM एंड FEA, एनालिसिस अलग चीज है, उसका एनालाइज करने का मेथड अलग चीज होती है सर। हाँ, पर वो FEM और FEA जो है लिटरेचर में सेम, मतलब एक तरह सर से नहीं कैसे मान सकते हैं सर, मेथड एंड एनालिसिस। हाँ कोई बात नहीं, पर तो क्विज है मतलब जो है ना, FEA फाइनाइट एलिमेंट दोनों ही एनालिसिस। चीजें यूज होती हैं, तो आंसर इज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी तो हो ही नहीं सकता है, इनफाइनाइट एलिमेंट, पार्शियल एलिमेंट, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, सो आंसर इज द ओनली फाइनाइट एलिमेंट।
So a triangular plane stress element has degrees of freedom. कितनी सर डिग्री? अब ये सर मेरे को इसमें भी डाउट था सर। अब इसका आंसर तो 6 है, पर लेकिन सर अगर प्लेन पे ही ले रहे हैं हम, तो प्लेन हाँ। पे तो मोशन सिर्फ 3 डायरेक्शन में हो सकता है, एक एक्स वाई जेड और एक सॉरी एक्स वाई और जेड के अबाउट रोटेशन। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए ना सर, प्लेनर अगर एरिया है तो। प्लेन में कैसे 3 डायमेंशन हो जाएगा? सर प्लेन है अगर तो एक मान एक्स वाई में लीजिए मूवमेंट करेगा। ये क्वेश्चन एक पेपर पे है, ठीक है? हम्म दिस क्वेश्चन इज रिटन ऑन दिस पेपर। हम्म तो इस पेपर की कितनी डायमेंशन है? 1 सर 4। 2 डायमेंशन है फिलहाल तो, पर लेकिन तो अगर हम triangular- रोटेशन मानेंगे जेड के अबाउट तो 3 हो जाएंगी। नहीं, रोटेशन नहीं ले रहे ना हम तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, 3 सर जेड कहाँ से आ गया सर प्लेन डायरेक्शन में? के सर हिसाब से करें कार्टेशियन में। सर जेड तो नहीं आ सकता ना, पर प्लेन तो किसी प्लेन में कोई भी पॉइंट है तो उसको हम कितने कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे? किसी प्लेन के अंदर पॉइंट है 3 कोऑर्डिनेट से करेंगे। हाँ 2 ही कोऑर्डिनेट से करेंगे ना, x1 y1 और x2 हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो दैट्स व्हाई किसी एक पॉइंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 2 होगी, और ट्रायंगल में 3 नोड होते हैं तो 3 2 6, सो 6 विल आंसर। सर ये समझ में नहीं आया मुझे सर। ये वाला क्वेश्चन हाँ सर एक बार आप ड्रॉ करके बता दीजिए सर। ड्रॉ करके देखो। चलो इस क्वेश्चन को आप, चलो ये बंद तो हो ही गया, मैं शेयर कर लेता हूँ पीपीटी। शेयर इट, यस। सर जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि सर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस तरीके से डिफाइन करते हैं सर कि इंडिपेंडेंट पॉसिबल मूवमेंट्स। हाँ हाँ बिल्कुल, इंडिपेंडेंट। हाँ इंडिपेंडेंट बिल्कुल सर। ओके अब सर अगर हम एक पॉइंट का, हम जैसे ट्रायंगल का लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करते हैं, हमें हाँ। ट्रायंगल का मालूम है कि पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो तो फिक्स्ड है, हाँ वो मूव कर नहीं सकता। अब सर एक पॉइंट को अगर हम प्लेन में लेते हैं तो उसके पॉइंट के सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं पॉइंट के। तो अब इसके पर मेरी लेकिन बात प्लेन लेट मी लिसन फर्स्ट, है ना, लेट मी लिसन। तो देखिए, सर हाँ सर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस, after application of the forces, this point can be displaced, yes or no? यस सर। This point can be displaced, this point can be displaced, this point can be displaced, ठीक है? So this point can be displaced, it may shift from 1 to 1 dash, another point, it may shift from 1 to 1 dash. So from 1 to 1 dash, what are the coordinate system will be useful for this, for going? If it is in xy plane then x and y. let initial coordinates are u1 and v1. Let there is a global coordinate system u and v, ठीक है? So let the initial coordinates are u1 comma v1. u1 is the horizontal displacement, v1 is the vertical displacement initial, and after the application of the forces, the new coordinates are u1 dash and v1 dash. So the new displacement is u1 dash, horizontal displacement is u1 dash, vertical displacement is v1 dash. So to express this displacement, only 2 degrees of freedoms are required. ठीक है? जितने FEM के अंदर जितने कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाता है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से, वही हमारे लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाती है, ठीक है? So we have 2 degrees of freedom for node 1, 2 degrees of freedom for node 2, and 2 degrees of freedom for node 3 also. So total degrees of freedom are 2 plus 2 plus 2, that will be 6. So that is if all the For 3 the 3 points are noded, not let me complete. For the 3 noded triangle, है ना? और कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 2 3 4 5 6 यदि वो 6 noded triangle है, then the degree of freedom will be 12. हमने कैलकुलेशन करी थी 2 6 से 12. अब आप बोलिए। यस हाँ सर मैं कह रहा था सर जैसे फर्स्ट तो सर सॉरी सर कल की क्लास में ले नहीं पाया था सर अच्छे से आप सर। ले नहीं पाए क्लास? नहीं सर मैं आया था पर लेकिन मैं डेंटिस्ट के पास था सर कल, और मेरे बैटरी खत्म हो गई थी 1% थी। क्विज भी मैंने ली थी स्टार्टिंग में। तो आप थे सर स्टार्टिंग में मैं क्विज में था, फिर मेरा क्विज भी स्विच ऑफ हो गया था फोन, मैं वो भी लीव हो गया था सर। हाँ, तो इसी वजह से आपने लेक्चर किया है ना, तभी डिग्री नहीं ऑफ कर फ्रीडम पाया का था। कांसेप्ट रह गया आपका। ये सब हमने डिस्कस
क्या था कल के लेक्चर? पर अब मैं सर एक चीज ये जानना चाहता हूँ सर, अब जैसे अगर प्लेन है अभी हमारा, इसमें हाँ। प्लेन में ट्रायंगल है अभी हमारा, और हाँ। अब इस ट्रायंगल को मैं आपने सर पॉइंट पॉइंट पे मतलब डिफाइन किया है। अब हाँ। सर आपका पर्टिकुलर एक ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, तो अगर हम हम जानते हैं उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक अब है। इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का हम एक भी पॉइंट अगर हम डिफाइन करेंगे और हाँ। उसका ओरिएंटेशन डिफाइन कर देंगे, पोजीशन हाँ। एंड ओरिएंटेशन, तो हम उस हाँ। पूरे ट्रायंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं ना सर पूरे उसमें। देखो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ऐसे ना, वो पूरे ट्रायंगल की नहीं पूछी जा रही है। डिग्री ऑफ है वो नोड्स की पूछी जा रही है। देखो ट्रायंगल के अंदर तो हमें बताना है कितने नोड है का ट्रायंगल है, 6 नोड का ट्रायंगल है, 9 नोड ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसमें कितने नोड हैं उसके हिसाब से डिसाइड होती है। अच्छा ठीक है सर। जैसे जैसे तो नोड सर, बढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा। तो नोड नोड हम किस लिए सर डिफाइन करते हैं? वो एक्यूरेसी के लिए है ना, ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि देखो एफईएम मेथड हमें क्या देती है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देती है। तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देती है मतलब उनमें कुछ एरर इन्वॉल्व होती है। ठीक है। थ्री नोडेड ट्रायंगल से किसी 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे, और हम 6 नोडेड ट्रायंगल की हेल्प से किसी 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये वाले रिजल्ट्स ऐसा देखा गया है कि ये वाले रिजल्ट्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, है ना। ये वाले रिजल्ट्स रियल सॉल्यूशन के लगभग पास में होते हैं, उसमें एरर मिनिमाइज हो जाती है। So when we move to higher order element from three nodes to 6 nodes, 6 nodes to 9 nodes, so calculation complexity increases, but the accuracy, calculation complexity भी बढ़ती है, लेकिन साथ में accuracy भी improve होती है। ठीक है। सर समझ गया। और सर रियल, ये हमारा रियल क्यों नहीं कर सकता? रियल नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सी चीजों के सोल्यूशन ही नहीं होते। जैसे कि देखो अभी हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो किया था, तो ODE 23 से हमने सॉल्व किया था, ODE 45 ओके सर समझ गया सर। अब जैसे ये जो टर्बुलेंट सोल्यूशन फ्लो हो है गए तो थे, ये सोल्यूशन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन से थे, तो दैट वाज नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन, दे वर द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। गॉट इट सर। चलिए मैं जरा सा फिर से वापस क्विज पे आ रहा हूँ। The answer is 6. Next question. The higher order elements are also called complex elements. कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। So answer is complex. Support the displacements are equal to, बताइए। 0 6 से सपोर्ट तो डिस्टेंस फिक्स सपोर्ट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो आंसर इज 0। सही। सम ऑफ ऑल द शेप फंक्शंस इज इक्वल टू, शेप फंक्शन क्लास में हमने क्या होते हैं? शेप फंक्शंस डिराइव किए थे, है ना। हमने शेप फंक्शंस डिराइव किए थे, और वो शेप फंक्शंस हम, आप रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना पिछली क्लास की, है ना। तो हमने डिराइव किए थे, तो हमारा जो पहले नोड का जो शेप फंक्शन आया था, वो हमारा आया था 1 - x/l, और जो दूसरा नोड का शेप फंक्शन आया था वो आया था x/l। तो दोनों को प्लस करिए, 1 - x/l प्लस x/l, 1 आएगा आंसर। आंसर इज 1, है ना। फंक्शंस का टोटल हमेशा 1 होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिवाइज द मॉडल, सॉल्व द मॉडल, एस्टैब्लिश द फाइनाइट एलिमेंट मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो इंटरप्रेट तो रिजल्ट लास्ट में आएगा जब रिजल्ट आ जाएंगे। इसे स्टेबलाइज होना चाहिए, स्टेबलाइज फाइनाइट एलिमेंट मॉडल ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, so what will be the answer? C, stabilize the finite element model of the problem, है ना। हमें उसे कितने एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, आप मॉडल डिसाइड करोगे, है ना। आपको ट्रायंगुलर एलिमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, रेक्टेंगुलर एलिमेंट से करनी है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट पार्ट्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ द इंजीनियरिंग सिस्टम? तो लास्ट पार्ट क्या होता है? सर इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। लास्ट में तो इंटरप्रिटेशन ही होता है, जब हमारे आ जाए सॉल्यूशन होने के बाद, सॉल्वर से सॉल्यूशन होने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनको फिर हम एनालिसिस करें, इंटरप्रेट करें कि हमारे रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं ना, उनका एक्सप्लेनेशन करें, इंटरप्रिटेशन करें, वो रिजल्ट सही भी आए या नेगेटिव रिजल्ट्स आए। सो दैट इज द लास्ट पार्ट। तो आंसर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट।
in which method of FEA the displacements of the nodes are considered as unknowns of the problem. तो आज हम जो एक टेस्ट केस एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम अननोन हमारे डिस्प्लेसमेंट्स हमारे अननोन ही होंगे, है ना. वी विल कैलकुलेट दैट टेस्ट केस एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट एलिमेंट. वो कौन सी मेथड कहलाती है ये? कल हमने कौन सा मैट्रिक्स निकाला था? फोर्स मैट्रिक्स निकाला था या स्टिफनेस निकाला था या डिस्टेंस या स्पेशल एलिमेंट? बताओ. कल की क्लास जिन्होंने भी अटेंड की होगी तो हमने क्या निकाला था कल? जो हमने एक पूरा मैट्रिक्स निकाला था k माइनस k k, याद आया? तो वो क्या था? दैट वाज स्टिफनेस मेथड, है ना. स्टिफनेस मैट्रिक्स. सो आंसर इज स्टिफनेस, है ना. और आज हम जो प्रॉब्लम टेस्ट केस एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो भी हम स्टिफनेस मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं. दिस इज राइट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए FEA सॉफ्टवेयर? अबेकस, एंसिस, कॉमसोल, ऑल द अबव. ऑल द अबव सारे के सारे ये सब FEM एनालिसिस करते हैं. सो आंसर इज ऑल द अबव. If the solution of the problem varies with time, the analysis is said to be. टाइम के हिसाब से यदि कोई चीज वेरी करती है तो डायनामिक बोलते हैं. डायनामिक ही होती है ना. दैट इज द डायनामिक एनालिसिस. द कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच चेंजेस द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड. ऐसा सिस्टम जो सर ये तो एलिमेंट के हाँ चेंज होने से चेंज हो जाता है तो ये लोकल होता है. लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सही है. सो इट इज लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. Which of the following methods are used for solving simultaneous linear equation? लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बताओ. अभी आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करे थे. एक असाइनमेंट था जिसमें आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाई थी. Ax इक्वल टू b, है ना. अलजेब्रिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया था विद 4 अननोन्स. कौन सी मेथड से किया था आपने? मैट्रिक्स मेथड से किया था. तो वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ही तो थे. सर कौन सा मेथड सर? तो हमने एक 4 अलजेब्रिक इक्वेशंस लिए थे और उसमें 4 हाँ मैट्रिक्स से सॉल्व किया था वो. हाँ मैट्रिक्स से सॉल्व किया था ना. तो वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड थी. और मैट्रिक्स के लिए बहुत सारी मेथड और भी होती हैं. तो बताओ इनमें से आपने कोई नाम सुना है जो सर गॉस जॉर्डन सुना है पर लेकिन बाकी की कोई नहीं सुने. तो गॉस जॉर्डन नहीं है. गॉस जॉर्डन इज द मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. यही है. दिस इज द आंसर. ये गॉस जॉर्डन और मैट्रिक्स इन्वर्जन में क्या डिफरेंस होता है बताओ जरा. देखो मैट्रिक्स में तो पूरे मैट्रिक्स की इन्वर्जन होती है, ठीक है. और गॉस जॉर्डन मेथड क्या करती है? वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाती है. मतलब डायगोनल से नीचे होते हैं उनको जीरो में कन्वर्ट कर देती है विद द रो ऑपरेशंस. ठीक है. जैसे आप लिखते हैं जो भी, तो रो ऑपरेशन के द्वारा वो डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करती है और फिर उसे इजीली सॉल्व कर देती है. काफी एफिशिएंट मेथड होती है. रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इन्वर्जन के कंपैरिजन में कम समय लेती है ना. और ये आपको कब पता लगेगा? जब आपके नंबर ऑफ द अननोन्स काफी ज्यादा हो. तो गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको कम समय लगेगा एज कंपेयर टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. सो ये ठीक है. The art of subdividing the structure into convenient number of small elements. डिस्क्रिटाइजेशन ही पढ़ा है. डिस्क्रिटाइजेशन इज करेक्ट. सही है. Pick the odd element. Bar, truss, beam, triangular element. इसमें से odd सर ट्रायंगुलर एलिमेंट. हाँ क्योंकि देखो बार 1 डायमेंशनल, बीम भी 1 डायमेंशनल है, ट्रस भी 1 डायमेंशनल है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज ए ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है वो 2 डायमेंशनल एलिमेंट है. So triangular element is right. Finite element analysis is also called as finite element method. True or false? It is true. True. It is true. What is the first step in the finite element analysis? Discretization. Discretization. Yeah, question. Okay. Select the number of DOF in the given element. कितनी आएगी? 6. बिल्कुल सही है ना. 6 ही आएगा. It is right. Which is the most fundamental 3D element? तो देखो इसमें ये क्यूबॉइड है, ये टेट्रा है, ये भी टेट्राहेड्रॉन है लेकिन टेट्राहेड्रॉन विद 4 more nodes. हाँ, this is the simple, है ना, which is the most fundamental element. Yeah, it is the tetrahedron. We have discussed all these things in the lecture. In ANSYS, the maximum value of the calculated parameter is denoted in
तो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला कलर कौन सा होता है? रेड होता है हमेशा सर। रेड, है ना, रेड। तो रेड में हमारा दिस पार्ट विल बी द आंसर। इसका आंसर चेक करते हैं। यस, रेड इज आंसर, सही। So I think quiz is complete now. So I am now again, I am stop sharing this quiz and I am moving to PPT again. PowerPoint is equal. PPT visual है आपको? Yes, PPT is visible. तो अब मैं ले रहा हूं आपका टेस्ट केस एग्जांपल, है ना। आई एम टेस्ट केस एग्जांपल। इस एग्जांपल के माध्यम से ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑक्टेव में कैसे फाइंड करेंगे, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो आई एम नाउ मूविंग टू टेस्ट केस एग्जांपल। टेस्ट केस एग्जांपल को देखिएगा जरा। दिस इज द टेस्ट केस एग्जांपल। सो हियर देयर इज ए स्प्रिंग assemblage system is given to you. So how many springs are there? 1, 3। so number of the elements are 3, ठीक है। ये सर्किल में जो भी नंबर लिखे हुए हैं ये हमारे एलिमेंट है ना। सो दिस इज एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 एंड एलिमेंट नंबर 3। और ये जो पॉइंट है, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 2। So these are known as nodes. These are known as nodes. So element number 1 is between node 1 and node 3. Element 2 lies between node 3 and node 4, and similarly element 3 lies between node 4 and node 2. Here K1 is the stiffness. So stiffness of this spring is 200 न्यूटन पर मिलीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, लेट दिस इज द स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग का जो भी लेंथ है मान लेते हैं इट इज 5 सेंटीमीटर। द स्टिफनेस ऑफ दिस स्प्रिंग इज गिवन, लेट सपोज 200 ही मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, 200 न्यूटन पर mm। नाउ आई एम कटिंग दिस स्प्रिंग फ्रॉम द मिडिल, है ना। मैंने इस स्प्रिंग को बीच में से कट कर दिया। So now I am having 2 springs, first and second. ये स्प्रिंग काटने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। So the stiffness of this matrix is let K1, the stiffness of this matrix let K2. जरा बताएंगे K1 की वैल्यू क्या है और K2 की वैल्यू क्या है? Anyone? 100 100। 100 100। कोई और बताइए। 100 100 is not correct. कोई और बताइए सोच के। सर 1/K1 + 1/K2 = 1/K। हाँ, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा, सॉरी 100 नहीं आएगा। सीरीज में मैं भूल गया था, पैरेलल में होता है सर समेशन, सीरीज में नहीं, है ना। तो मान लीजिए मैं किसी स्प्रिंग को बीच में से काट दूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो उसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी या घट जाएगी, या उतनी ही रहेगी? सर इतना कंफर्म है सर कि घट जाती है। स्टिफनेस मटेरियल प्रॉपर्टी होती है क्या? मान लो ये माइल्ड स्टील की बनी हुई है स्प्रिंग, मान लीजिए माइल्ड स्टील है, तो काटने के बाद भी ये माइल्ड स्टील ही है, मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं। तो क्या स्टिफनेस मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, यस और नो? हाँ जी, मटेरियल प्रॉपर्टी होती है स्टिफनेस। बोलिए बोलिए, वो गलत हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सही भी हो सकता सर है। मैं गैस करता हूँ सर, हाँ होती है। होती है। चलिए मैं बताता हूँ, स्टिफनेस मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। स्टिफनेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, इस पे आपने कोई फोर्स लगाया, तो इस स्प्रिंग में कुछ डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा, ठीक है। फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन को हम कहते हैं स्टिफनेस।
ठीक है। अब मान लीजिए इस फोर्स को लगाने से 5000 न्यूटन के फोर्स को लगाने से डेल्टा की वैल्यू मान लो 5 सेंटीमीटर आ रही है। अब मान लो इस स्प्रिंग को मैंने बीच में से काट दिया तो स्प्रिंग हो गई छोटी, स्प्रिंग की लेंथ कम हो गई काटने के बाद, तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा सर। अब मैंने वही फोर्स लगाया तो क्या इसमें 5 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाएगा? बताओ कम होगा। यदि स्प्रिंग की लेंथ छोटी हो गई तो डिफ्लेक्शन 5 सेंटीमीटर से कम होगा। आप ज्यादा नहीं खींच पाएंगे उसको, स्प्रिंग टाइट हो जाएगी। जितनी छोटी स्प्रिंग हो जाएगी, जितनी लंबी स्प्रिंग होगी, जितनी उसमें कॉइल्स ज्यादा होंगी तो उसकी स्टिफनेस कम होगी, और जितनी उसमें कॉइल कम होंगी उतनी ही उसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी। तो हमारे वाले केस में क्योंकि कॉइल्स आधी हो गई हैं तो स्टिफनेस डबल हो जाएगी, यानी कि K1 भी 200 आएगा, K1 आएगा 400, 200 का डबल 400, और K2 भी आएगा 200 का डबल 400। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यस सर। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर जैसे भी आपने इसमें फोर्स लगाया सर, और इसमें डेल्टा आया 5 सेंटीमीटर। अब लेट्स इमेजिन कि ये स्प्रिंग जो थी वो हमारी थी कास्ट आयरन की। अब हम यहाँ पर माइल्ड स्टील की सर अगर स्प्रिंग बना के लगाते हैं MS की, तो और हम 5000 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या सेम डिफ्लेक्शन आएगा 5 सेंटीमीटर का? कास्ट आयरन की तो सर होती ही नहीं है स्प्रिंग। अरे इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ। नहीं इसको ऐसा अच्छा समझो। अच्छा। देखो स्टिफनेस इज चेंजिंग ऑल्दो द मटेरियल इज सेम। मान लीजिए ये भी माइल्ड स्टील है, ये भी माइल्ड स्टील है, स्टिफनेस चेंजिंग ऑल्दो द मटेरियल इज सेम। Stiffness is not a material property, but for the same material, if the number of the coils is half, then stiffness is doubled. यदि ये कास्ट आयरन की भी होती तो नंबर ऑफ कॉइल्स हाफ होने से इसकी स्टिफनेस डबल हो जाती। नहीं सर वो तो ठीक है, पर लेकिन अगर हम मटेरियल पहले सुनो, लेकिन यदि 5000 न्यूटन के फोर्स से इसमें डिफ्लेक्शन 5 सेंटीमीटर था फॉर द माइल्ड स्टील, तो हो सकता है कास्ट आयरन के केस में 5000 से 5 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन ना मिले, आपको 2 सेंटीमीटर का ही डिफ्लेक्शन मिले। तो सर यहाँ पर तो उस केस में इसकी जो स्टिफनेस है अभी 5000/5 यानी कि 1000 न्यूटन पर सेंटीमीटर आई माइल्ड स्टील के केस में, लेकिन कास्ट आयरन के केस में ये हो जाएगी 5000/2 यानी कि 2500 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो केस जो डिस्कस हो रहा है वो मटेरियल सेम का केस डिस्कस हो रहा है। वो तो ठीक है, पर सर आपका क्वेश्चन था कि स्टिफनेस मटेरियल प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो पर अगर हम ऐसा एग्जांपल लेके देखेंगे तो सर ऐसे तो लग रहा है कि मटेरियल चेंज होने पे प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, देखो स्टिफनेस चेंज हो रही है। नहीं ऐसे नहीं। स्टिफनेस जो है यदि मटेरियल प्रॉपर्टी होती तो स्प्रिंग की लेंथ कितनी भी ले लो, स्प्रिंग का वायर का डायमीटर कितना भी ले लो, सेम रहती। हाँ तो फिर तो सेम रहती ना, लेकिन सेम नहीं यस सर। तो दैट्स व्हाई नहीं सर, हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टी है। इट इज बोथ मटेरियल एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। यस दैट आई एग्री। हाँ, बट इट इज आल्सो इन मटेरियल। जनरल वे हम यही कहेंगे कि इट इज नॉट ए मटेरियल प्रॉपर्टी, और ये मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया। इट इज नॉट ओनली मटेरियल। हाँ, इट इज नॉट ए मटेरियल प्रॉपर्टी, नॉट ओनली ए मटेरियल प्रॉपर्टी, राइट। और हमारा जो केस डिस्कस हो रहा था उसमें तो मटेरियल चेंज हम कर ही नहीं रहे क्योंकि हम सेम स्प्रिंग को ही कट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे लौटते हैं दोबारा से, सेकंड क्लियर कर दो। So how many elements are in this question? Elements are 3. How many nodes are in this question? बताओ जरा, nodes कितने हैं? तो element को देता हूँ 4 है सर, 4, और node is 4. Now this is one node, this is another node, one more node, and this. So for the spring assemblies with arbitrarily numbered nodes, find the global stiffness matrix. है ना, तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमको निकालना। तो ये एलिमेंट 1 जो है इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स कल मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, डिराइव भी किया था मैंने ये, कि किसी स्प्रिंग के लिए जिसके अंदर 2 नोड हैं
उसके लिए जो हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है वो होता है K माइनस K माइनस K K। ये हमने कल डिराइव किया है क्लास में, वी हैव डिराइव्ड इट कि किसी स्प्रिंग के लिए लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारा K माइनस K होता है, ठीक है। तो अब यहाँ K1 का क्या मतलब है, K is the stiffness, one is denoting the element number। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो स्टिफनेस है वो हमारी कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू कितनी है 200, सो इट इज 200 माइनस 200 माइनस 200 200। Clear? This is the K1. This is not global. This is local. This is local stiffness. Now come to the element number 2. So I will write K2. 400 minus 400 minus 400. Very good, very good. So it is 400 minus 400 minus 400 plus 400. So this is K2. Similarly, what is K3? Anyone? Sir, 600 minus 600 Minus 600 minus 600 600. Very correct. सर जहाँ पे भी ये ग्लोबल स्टिफनेस आएगी तो सिंपल K माइनस K ले लेंगे सीधा मैट्रिक्स में। ग्लोबल नहीं, अभी तो लोकल ही निकले हैं, ग्लोबल तो अभी निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा तो शायद। ग्लोबल अभी कैलकुलेट होगा। अभी तो ये लोकल फॉर द फर्स्ट या लोकल स्टिफनेस फॉर द फर्स्ट थिंग, दिस इज लोकल स्टिफनेस फॉर सेकंड एंड दिस इज फॉर थर्ड, ठीक है। अब ये तीन हो गई। अब इन तीनों को यदि हम कंबाइन कर दें जब ग्लोबल निकले, ठीक है, तो चलिए कंबाइन कर देते हैं। सर अगर हमको डिफरेंस बताना हो लोकल और वोकल में तो कैसे बताएंगे, लोकल और उसमें ग्लोबल में? लोकल में और ग्लोबल में डिफरेंस मतलब अंतर है ग्लोबल स्टिफनेस में और लोकल स्टिफनेस में, ये पूछ रहे हो सर? हाँ तो वही बता रहा हूँ, है ना। अभी ग्लोबल स्टिफनेस जब मैं निकालूंगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। और अंतर वैसे मोटा मोटा अंतर ये है कि देखो लोकल में कितने नोड होते हैं, 1 और 2। लोकल केस में नोड कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। अब ये दूसरे वाले लोकल में कितने नोड हैं, इसमें भी 2 हैं। और तीसरे वाले लोकल में कितने नोड हैं, इसमें भी 2 हैं। तो इसकी जो स्टिफनेस होगी वो 2/2 की होगी। पहले वाले की, दूसरे वाले की भी 2/2 होगी, तीसरे वाले की भी 2/2 होगी। लेकिन जब मैं ग्लोबली बात करूंगा, पूरा ग्लोबल, जैसे ग्लोबल सर टोटली हो जाएगा फिर। हाँ, तब वो ग्लोबल कहलाएगा। तो अब इसमें कितने नोड हैं, 1 2 3 4, तो मेरे को ग्लोबल में 4/4 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो ग्लोबल मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, दैट विल बी 4/, वो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। ग्लोबल स्टिफनेस जो होगी वो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी और लोकल वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। तो अब मैं जरा सा ग्लोबल मतलब निकालता हूँ। तो ग्लोबल स्टिफनेस निकालने के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको कैपिटल के से, ठीक है। ये सारे स्मॉल के हैं, है ना। लोकल एफईएम मेथड में लोकल चीजें हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाएंगी, है ना। जैसे फोर्स है तो लोकल फोर्स स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ग्लोबल फोर्स कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए नोड नंबर 1 है, तो ये नोड नंबर 1 पर जो लोकल फोर्स होगा उसको हम लिखेंगे F1। अब 1 का मतलब क्या है, नोड नंबर, ठीक है, F1। और ये किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, X डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूं F1X और ग्लोबल को लिख सकता हूं F1X। तो स्मॉल f1x का मतलब है लोकल फोर्स और कैपिटल F1x का मतलब है ग्लोबल फोर्स। Similarly for stiffness, local is small k and capital K is global. So capital K हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, we will add up K1 plus K2 plus K3, ठीक है। अब K का मतलब क्या है, 200 minus 200 minus 200 200। K2 का क्या मतलब है, 400 minus 400 minus 400 400। तीसरा हमारा कितना है, 600 minus 600 minus 600 600। चलिए अब इन तीनों को यदि हम सम अप करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो बताइए जरा क्या आंसर आएगा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का। सर 1200 minus 1200 minus 1200 1200। ये आंसर नहीं आएगा,
आप ध्यान से करिए। देखो आपने मुझे बताया 1200 माइनस 1200 माइनस 1200 1200। आपने तो ऐसे किया है मेरे ख्याल से कि आपने 200 में एलिमेंटल 400 जोड़ दिए, एडिशन। 600 में 600 जोड़ दिए तो कितने हो गए? हाँ हाँ ऐसे 1200। ऐसे किया आपने, तो ये तरीका सही नहीं है। कारण इसका समझिए कि ये तरीका क्यों सही नहीं है। बिकॉज ये वाला जो एलिमेंट है वो तो नोड 1 और नोड 3 के बीच में है, तो ये इसको नोड 1 नोड 3 नोड 1 नोड 3 है ना। थोड़ा कलर चेंज कर देता तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट मी चेंज द कलर। तो जो पहला वाला एलिमेंट है उसके नोड हैं 1 3 1 3। दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसके नोड हैं 3 4। सो आई कैन राइट 3 4 3 4। एंड सिमिलरली हियर आई कैन राइट तीसरा वाला 4 2। सो आई कैन राइट 4 2 हियर एंड 4 2 हियर। देखो अब आप क्या कर रहे हैं, ये एलिमेंट क्या है 1 1 200। ये 1 1 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। और ये जो एलिमेंट है ये क्या है, थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो आप फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम थर्ड रो कैसे जोड़ सकते हो? ये तो मैट्रिक्स का रूल ही फॉलो नहीं कर रहे। सर ये समझा नहीं सर, वो भी तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ही हुआ ना उसके हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, देखो ग्लोबल सिस्टम में कुल कितने नोड है बताओ? 4। ग्लोबल सिस्टम में तो 4 नोड है। ग्लोबल सिस्टम में कितने नोड हैं? 4 नोड। तो अब इसकी एडिंग कैसे होती है वो समझो। तो मैं जरा सा इसकी इंक क्लियर करता हूं पहले। अब मुझे समझ में आ गया सर। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। वैसे तो हम एक ऐड सेकंड कैसे होल्ड करेंगे सर कीजिएगा जब जरा, हम इसको, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ बोलिए जल्दी से। मतलब हम एक इन अब चीजों जल्दी को बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक सर सेकंड। मैं हाँ यस सर हाँ क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर आप थोड़ा ये बताइए सर, मैं बाद में अगर टाइम बचेगा तो। हाँ लास्ट में मैं पहले मुझे सुन लीजिए है ना। यस फर्स्ट लिसन टू मी। तो मैं अब ग्लोबल मैट्रिक्स निकालना आपको बता रहा हूँ। तो K इक्वल टू, मैंने देखा कि नोड कितने हैं 4, तो सीधी सी बात है 4 बाई 4 की मैट्रिक्स बना लूंगा मैं पहले। ठीक है, और 4 बाई 4 की मैट्रिक्स में मैं नंबरिंग कर लूंगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले K1 की वैल्यू क्या है 200 माइनस 200 माइनस 200 200। अब इसके नोड्स क्या हैं 1 3। सो इट इज 1 इट इज 3 इट इज 1 इट इज 3। ठीक है, अब इस 1 3 1 3 की जो 4 वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यू मुझे यहाँ ट्रांसफर करनी है 1 3 1 3। तो देखो 1 3 1 3 पे मैंने ट्रांसफर किया 200 माइनस 200 माइनस 200 200। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द लोकल इनटू द ग्लोबल, है ना। लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ट्रांसफर्ड or superimposed into the global matrix at the connected places, है ना, concerned places। ये ध्यान जरूर, कहीं भी आप प्लेस नहीं कर देंगे, आप नोड के हिसाब से ही प्लेस करेंगे। because this element is connecting node 1 and node 3, so you will transplant the values at node 1 and node 3 only। तो देखो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये 1 1 1 1 पे कितनी वैल्यू है 200। तो यहाँ देखो 1 1 पे आपने क्या वैल्यू रख दी 200। फिर आपकी वैल्यू 3 1 पे कितनी है -200, तो आपने लिखा 3 1 -200। सिमिलरली 1 3 पे -200 और 3 3 पे 200। 1 3 पे -200 3 3 पे 200। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। आ गया सर। वेरी गुड। अब आते हैं K2 पर। तो K2 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी 400 माइनस 400 माइनस 400 प्लस 400। अब इसके नोड कौन कौन से हैं 3 और 4, तो आप लिखेंगे 3 4 3 4। तो अब आपकी इसकी वैल्यूज को जो गया 3 3 3 3 पे कितनी वैल्यू जाएगी 400। 400 3 और 3 कौन सी इसके बीच में
ये वाली पोजीशन है ना 3 3 600 हो जाएगा वो। तो इसमें हम 400 प्लस कर देंगे, 200 पहले से है यहाँ पर, 400 और प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 3 माइनस 400 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला पार्ट है 3 4 माइनस 400, फिर 4 प्लस 400। ये हमारा दूसरा लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स ग्लोबल के अंदर ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली K3 की वैल्यू क्या है, 600 माइनस 600। तो सर हमें ऑक्टेव तो डायरेक्ट दे देगा ना, ये तो हम सॉल्व करके देख रहे हैं। हाँ, ये तो मैनुअल सोल्यूशन है। ऑक्टेव में तो कोडिंग लग जाएगी, सारे काम को लूपिंग में चला देंगे हम, कोडिंग चल जाएगी वहां। तो कोडिंग से वो ऑटोमेटिक दे देगा, चाहे स्टिफनेस मैट्रिक्स 10x10 का हो, चाहे 100x100 का हो। एक सिंपल सी कोडिंग का कंसेप्ट काम करेगा वहां तो। और आपने लूप पढ़ी रखे हैं, लूप का कंसेप्ट ही लगता है इसमें कि कौन कौन से हम आई जे के बना लेते हैं, है ना। अब जैसे ये फर्स्ट रो है तो i = 1, i = 2, i = 3, i = 4, और ऐसे कॉलम कितने हैं, j = 1, j ऐसे उसी i और j में ही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, ठीक। तो वो ऑटोमेटिक दे देगा। ठीक है, अब जरा K3 को ट्रांसफर करो, तो बताओ मैं कहां पर क्या क्या लिखूं। K3 हमारा किस किस को कनेक्ट कर रहा है, 4 और 2 को। तो देखो मैंने लिखा 4 2 4 2। अब 4 पे कितना लिखना पड़ेगा, 600। 600 प्लस 400। हाँ, तो देखो 4 और 4, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 600। ये 600 प्लस हो गया यहाँ पे। अब ये माइनस 600 मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, सेकंड कॉलम 4th रो। तो देखो सेकंड कॉलम ये है और 4th रो ये वाली है, ध्यान से देखना। तो इस जगह पर आएगा -600। फिर मेरा देखो सेकंड 4th कॉलम सेकंड रो, तो 4th कॉलम सेकंड रो यानी यहां पर ये आएगा -600। फिर है हमारा सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम सेकंड रो यानी कि यहां पर ये आएगा +600। तो मेरा थर्ड लोकल भी ग्लोबल में ट्रांसफर हो गया। तो सब ये तीनों हमने ट्रांसफर कर लिए। तो अब ट्रांसफर करने के बाद हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे 200 वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आया, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 0। यहाँ -200 आ गया, यहाँ कुछ नहीं आया, वी विल कंसीडर 0। 200 के नीचे कुछ नहीं आया, वी विल कंसीडर 0। -200 के नीचे कुछ नहीं आया, वी विल कंसीडर 0। -200 के आगे कुछ नहीं आया, वी विल कंसीडर 0। -200 के नीचे कुछ नहीं आया, वी विल कंसीडर 0। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं अब 200 0 -200 0 0 600 0 -600 -200 0 200 और 400 ये जुड़ जाएगा, प्लस करके ये 600 भी हो जाएगा। 600 -400 0 -600 -400 और ये तो -1000। तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, दिस विल बी 1000। सो दिस इज द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो मैं जरा सा चार्जर लगा लूं, आप आधा मिनट नोट करिएगा, बैटरी लो दिखा रहा है सिस्टम। सर ने क्या एक्सेल फाइल पे अपलोड करना कल बता दिया था? नहीं बताया था सर शायद। कल सर ने ऑक्टेव पे फिर मतलब ये दिखाया था कि फाइनाइट एलिमेंट मतलब कहाँ कहाँ टेंशन लग रही है, कौन सी ज्योमेट्री पे। जिसने पूरी क्लास ली है भाई उससे पूछ। कोई है?
आज ओंकार नहीं आया। हाँ उनका नहीं आया आज। मतलब उत्कर्ष सिर्फ बता दे। सिर्फ 10 ही लोग आए हैं। आज तो बहुत ही गंदी आबादी है। बरसात हो रही है, ऑनलाइन आ नहीं पाए हैं बच्चे इस वजह से। यहाँ पर भी वाईफाई बंद हो गया, पर मेरा तो नेट जला हुआ है मोबाइल में। नंदी कॉलेज में है क्या? नहीं, मैं इधर हूँ घर पे। घर पे है भाई, दिख नहीं रहा, वो स्केटबोर्ड पे डोल रहा है। हम्म, यस, मेरी आवाज आ रही है आपको और पीपीटी विजुअल है फुल मोड में? जी हाँ सर। सर। तो हम यहाँ पर थे, हियर हम यहीं पर थे। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं। इसमें किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, है ना। फिर मैं ग्लोबल फोर्सेस पे जा रहा हूँ। मतलब मुझे 3 चीजें निकालनी है। हाँ सर, ग्लोबल फोर्सेस पे चलते ठीक है ना, क्लियर है आपको बिल्कुल? हैं। यस सर, एकदम क्लियर है, मस्त क्लियर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बस हमको कंसर्न नोड नंबर्स पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो लिखने के लिए तो ऐसे ही लिखा जाता है ना। ये ध्यान रखना कि लिखने के लिए तो हम राइटिंग में ऐसे ही लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखा भी था। मान लीजिए मैंने लिखा ग्लोबल स्टिफनेस इज summation of the local first local plus second local plus third local। लिखने को ऐसे ही लिखा जाता है। इसका साइज भले ही 2/2 हो, इसका साइज 2/2 हो, इसका साइज 2/2 हो, लेकिन जो फाइनल समेशन के बाद साइज आता है वो 4/4 इस पर्टिकुलर केस में, है ना। डिपेंड करता है नंबर ऑफ दी स्ट्रिंग्स। यदि 8 हो गई, मान लो 8 एलिमेंट हो गए, तो बताओ कितना साइज आ जाएगा ग्लोबल स्टिफनेस का? 9x9। 9/9, है ना। बिल्कुल सही है, 9 नोड हो जाएंगे। यहाँ पे 4 नोड हैं तो 4/4, जितने नोड होंगे उतने बाई उतने का आ जाएगा साइज। तो अब हम चलते हैं ग्लोबल। इसको जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। के मैट्रिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इसकी अभी जरूरत पड़ेगी बाद में, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली सर। इस ले ली मैट्रिक्स सर। का, हाँ, इसे मुझे बता दीजिएगा बाद में, है ना। तो फिलहाल मैं एक क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ का। सो क्लियर। अच्छा, मैंने कीप कर दिया था, इसलिए दोबारा से शेयर करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। तो सर आपने कल एक्सेल फाइल पे अपलोड करना सिखा दिया था क्या सर, ज्योमेट्री को, एक्सेल एनालिसिस नहीं 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 नहीं, मैंने अब आज आज कराएंगे उसको, है ना। को? ओके। यस, अब बताइएगा
अब मेरे ख्याल से इंक वगैरह नहीं आनी चाहिए कोई। Yes, question is visible? Yes, sir. Okay. So in this question, we have completed the global stiffness matrix. Now I will give you the global force vector, है ना? So global force vector is given by, तो देखो stiffness matrix global की बात कर रहा हूँ, global stiffness matrix का साइज क्या आ गया, n by n, है ना? यदि हमारे नोड 4 है तो n by n हो गया, ठीक है। ग्लोबल फोर्स वेक्टर का साइज जो आएगा वो होता है n by 1, ये कॉलम वेक्टर होता है ना? इट इज बेसिकली ए कॉलम वेक्टर, और ये हमारा होता है मैट्रिक्स, और ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब F को मैं कैसे लिखूंगा, देखो पहला नोड 1, तो यहाँ के फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, F1, और ये कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन, सो आई विल राइट F1x, सिमिलरली F2x नोड नंबर 2 के लिए, और F3x नोड नंबर 3 के लिए, और F4x नोड नंबर 4। सो दिस इज माय ग्लोबल फोर्स वेक्टर, ठीक है। जितने भी नोड होंगे उतनी उसमें रो होंगी, है ना? मान लो पहला नोड है तो पहले नोड का फोर्स, दूसरे नोड का फोर्स, तीसरे नोड का फोर्स। अब हम अपने क्वेश्चन में देखें कि बताओ इस पहले वाले नोड पर कितना फोर्स लग रहा है, बताओ जरा, आपको क्या लगता है कितना फोर्स है इसमें? 200 200? नो, 200 तो K1 पे है सर ये तो K1 की वैल्यू है, स्टिफनेस है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी। सर इसमें लग रहा है 1/K1 + 1/K2 + 1/K3 होल ब्रैकेट इनटू नहीं सर, मतलब इससे पहले हम वो निकाल लेंगे टोटल ग्लोबल K की वैल्यू, और उसके बाद K इनटू सर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा टोटल वो। हाँ तो अब डिस्प्लेसमेंट पता है क्या आपको यहाँ? सर अभी हमें नहीं पता है सर, अगर हाँ, इंडिविजुअल का हाँ। पता चल जाएगा फिर पता चल जाएगा। हाँ, तो हम इसको जो है एफईएम मेथड से सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि नोड नंबर 4 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस नोड नंबर 4 पे देखो एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? 25 किलोन्यूटन। 25 किलो न्यूटन। तो ये किलोन्यूटन 25 किलो न्यूटन जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? इट इज द ग्लोबल फोर्स, एट नोड नंबर 4। तो नोड नंबर 4 का फोर्स कितना है, F4x। तो F4x की वैल्यू हमारे एग्जांपल में 25 किलो न्यूटन है, ठीक है। अब बताओ इस पे 3 नंबर जो नोड है, इस पे जो ग्लोबल फोर्स है वो कितना है? क्वेश्चन में कुछ है क्या? का फोर्स है और फोर्स बोलो। सर आपकी आवाज कट कट के आई, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ।
Yes, am I audible? आज मेरी यस सर, हेलो, यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके ओके ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, वापस आ गया। मैं आपको समझा रहा था ग्लोबल फोर्स वेक्टर। तो ग्लोबल फोर्स वेक्टर का जो साइज होता है वो होता है नंबर ऑफ द नोड्स बाय 1, और ये कॉलम में जितने नोड होंगे उतने ही फोर्स होंगे। तो फिलहाल हमारा जो ग्लोबल फोर्स, हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इस वाले, नोड नंबर 4 पे क्या डिफरेंस? हाँ तो ये जो फोर्स है ये F4x हो गया, इसका जो फोर्स है वो F2x हो गया। तो F2x की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, और F1x की वैल्यू कितनी होगी? एनी आइडिया, मतलब कितनी होगी? 0 होगी कि नहीं? यस और नो? सर F1x और F2x की तो 0 होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। F1x भी 0 होगा, F2x भी 0 होगा, है? यस सर, यस सर। नो नो नो, ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, ये फिक्स्ड सपोर्ट है। क्या स्ट्रक्चर है? फिक्स्ड सपोर्ट है। तो सपोर्ट इज ऑलवेज प्रोवाइड रिएक्शंस। हाँ सर, रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, पर लेकिन F2x और F1x तो 0 होगा ना सर, क्योंकि x नहीं 0 होगा 0। 0 क्यों होगा? देखो सपोर्ट क्या करती है, हमेशा फोर्स प्रोवाइड करती है, रिएक्शन देती है ना। और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन भी तो एक फोर्स ही है, ठीक है। तो जो F2x की वैल्यू होगी वो रिएक्शन के इक्वल ही होगी। तो जितनी रिएक्शन यहाँ पर आएगी उसके इक्वल ही फोर्स होगा। F2x इज बेसिकली द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट नंबर 2, एंड सिमिलरली F1x इज द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट नंबर 1। तो इस पर्टिकुलर हमारे केस में जो फोर्स वेक्टर होगा, ग्लोबल फोर्स वेक्टर, दैट विल बी F1x, F2x, F3x, F4x, और वैल्यू रखने के बाद ये हो जाएगा रिएक्शन 1, F और F2x is reaction 2, F3x is 0, F4x is 25 kilonewton, converted to Newton, so it is 25,000. Why I am converting to Newton? बताओ? Because the stiffness are given in Newton. So for the unit compatibility, I am changing it into Newton, so it is 25,000. Size is 4/1. मेरे ख्याल से ग्लोबल फोर्स वेक्टर अब क्लियर हो गया होगा। सर 0 बता दीजिए क्यों F3x? F3x, यस सर। हाँ देखो F3x इसलिए 0 है कि F3x पे सिस्टम में कोई इस तरह से फोर्स, जैसे 4 पे फोर्स की एरो दिखा रखी है, देखो ये, और लिखा हुआ है P। So P is the force applied at node number 4. It is the external force. It is the external force. हाँ सर, ग्लोबल फोर्स 0 होगा सर, सही बात। हाँ, नोड 3 पे तो फिलहाल ग्लोबल फोर्स तो कुछ नहीं है ना, हमने एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। हाँ सर, समझ। हाँ तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन लोकल एलिमेंट में अपना कोई फोर्स हो सकता है, लोकल फोर्स हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट के अंदर जो लोकल फोर्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, और वो तो सर हम रिएक्शन फोर्स को भी ग्लोबल फोर्स मानते हैं। हाँ, यस यस, दैट इज द ग्लोबल फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबल फोर्स हो गया, ग्लोबल स्टिफनेस हो गया। अब देखो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग सिस्टम है, तो स्प्रिंग सिस्टम में आपने बहुत ही वेल नोन इक्वेशन पढ़ी है, F इक्वल टू K डेल्टा। This is the equation for the spring, where F is the force, K is the stiffness, delta is the deflection, ठीक है। तो मैंने F क्या है? ग्लोबल फोर्स वेक्टर, ये पूरा का पूरा, दिस इज द ग्लोबल फोर्स वेक्टर। K क्या है? जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, और वो K मतलब 4/4 का पूरा वेक्टर। अब ये डेल्टा क्या है? तो डेल्टा को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज अगेन ए कॉलम वेक्टर। तो अब डेल्टा के लिए मैं बता दूं डेल्टा क्या होता है, ये कॉलम वेक्टर है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोड 1? इट इज u1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोड 2 इज u2, u3 एंड u4। so this is again the size 4/1, ठीक है। अब देखो k का साइज क्या है? 4/4। डेल्टा का साइज क्या है? 4/1। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी तो कितना मिलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद साइज क्या आएगा बताओ? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं बताओ?
नहीं है ही नहीं पॉसिबल सर। नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है सर। क्योंकि सर देखो 4 बाय जो 4 और 4 कॉलम बाय है 1 उसका रो से ये पॉसिबल नहीं, है। देखो इसमें कॉलम 4 हैं, इसमें रो 4 हैं, दोनों को मिलाओ बराबर, इसके कॉलम 4 इसके रो 4, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो व्हाट इज द फाइनल साइज ऑफ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन? यू विल गेट 4 बाय 1। 4 by 1। वेरी गुड। फाइनल साइज ये हो जाएगी 4 by 1, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू 4 by 1। और f का साइज क्या है? 4 by 1। तो वो जो हमें 4 by 1 का आंसर मिलेगा वो एक्चुअली ग्लोबल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेगा 4 by 1। ठीक है, तो F इक्वल टू K डेल्टा, और डेल्टा मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पे मान लो मैं लिखूं U1 U2 U3 U4, ये मेरा हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को फाइनली यहाँ पे ले ले रहा हूँ, F इक्वल टू K डेल्टा में वैल्यूज पुट कर देता हूँ और देखना 2 मिनट में सोल्यूशन आ जाएगा। F की वैल्यू मैंने लिख दी R1 R2 0 25, ये आया था हमारा। अब K आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जरा मुझे वैल्यू बोलिए पहली रो में क्या था? सर 2 एक सेकंड खोल के बताता हूँ सर। हाँ ट्रांसमिट हो जाएंगे। गैलरी दोस्तों ख्याल से 0 था, उसके बाद हाँ सर। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ मैं -200। हाँ चलो मेरे पास अभी हेलो सर। हाँ 200 जीरो मैं लिख रहा हूँ, जरा कोई करेक्शन हो तो बताना। चेक करिए जरा, मैं लिख रहा हूँ इसको, आप चेक कर लीजिए कि आपके पास यही है। हाँ सर, यही है ना? थर्ड रो जो है -200 0 0 600 -400 -400 then 0 -600 -400 plus 1000 plus 1000. This is the global K multiplied by displacement vector. So displacement vector is given by U1 U2 U3 U3 U4। करेक्ट। ये इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, इसका नाम है, इसको कहते हैं ग्लोबल इक्वेशन। ग्लोबल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द ग्लोबल इक्वेशन। अब बताओ लोकल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? अब लोकल इक्वेशन देखो, एक लिख के दिखा देता हूं पहले मैं आपको, है ना। ग्लोबल इक्वेशन में लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दी स्मॉल f इक्वल टू स्मॉल k डेल्टा। तो स्मॉल f, मान लो मैं एलिमेंट 1 के लिए बात करूं, फॉर एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो लोकल फोर्सेस होंगे वो क्या क्या होंगे? तो फर्स्ट एलिमेंट है क्या? ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, 1 और 3 को कनेक्ट करता है ना। तो मैं यहाँ पे जरा बना लेता हूँ फर्स्ट एलिमेंट। दिस इज द फर्स्ट कनेक्टिंग नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 3। व्हाट इज द लोकल फोर्स हियर? F1 and F2। F1x, F2 नहीं, F1x and this is F3x. Small letter denotes the local forces. ठीक है, अब ये कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट नंबर 1। तो आई विल राइट F1x1 F3x1। ये इसका नोटेशन का तरीका है FEM में, ठीक है। तो अब फिर से समझो एक बार, स्मॉल f का मतलब लोकल फोर्स, और ये 1 जो है ये डिनोट कर रहा है नोड नंबर, और x मतलब डायरेक्शन, और ये जो ब्रैकेट में 1 है ये डिनोट कर रहा है एलिमेंट नंबर, ठीक है। तो अब इसका जो ग्लोबल नहीं लोकल फोर्स वेक्टर हो गया F1x1 F3x1। दिस इज द लोकल फोर्स वेक्टर 2/1। इसका साइज क्या है? 2/1 इक्वल टू k। k आपका क्या था? 200 -200 -200 200, और डेल्टा आपके क्या थे? U1 U2। So this is the local equation for element 1। ठीक है, अब मैं क्या समझ में आ गया होगा? लोकल का साइज 2/2 में चल रहा है ना, और वो 4/4 में चल रहा है।
अब बताओ एलिमेंट 2 के लिए आप लिख सकते हो लोकल? मैं एलिमेंट 2 को ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ। दिस इज माय एलिमेंट नंबर 2 और एलिमेंट 2 किस किस को कनेक्ट कर रहा है? नोड नंबर 3 and 4 4 को। तो जरा इसके लिए लोकल इक्वेशन लिख के बताइए क्या है। सर f3x और नीचे सर f4x हाँ और f3x के बाद नीचे f4x नहीं f3x के बाद Element इसका 2 एलिमेंट नंबर बता दो। 2 f2 2 F4X x2 इक्वल टू आगे 400 ये सर 400 400 माइनस 400 4 हाँ वेरी गुड वेरी यही है। बिल्कुल सही, यही मैं चाह रहा था। अब और इसमें सर सर u2 और u3 और देखो ये हमने गलत किया है, ये u1 u2 नहीं आएगा, ये u1 सर वो u1 u3 आएगा U3 आएगा, u1 u3 क्योंकि ये तो 1 और 3 को कनेक्ट कर रहा है और ये इसमें U3 और U4 आता है। वेरी गुड वेरी गुड। इन द सिमिलर फैशन यू कैन आल्सो राइट द लोकल इक्वेशंस फॉर द एलिमेंट 3। तो इन लोकल इक्वेशन की तो फिलहाल जरूरत पड़ती नहीं है, इनकी जरूरत जब पड़ती है एफईएम में जब हमें लोकल फोर्सेस निकालने होते हैं, है ना। तो जनरली जो सोल्यूशन होते हैं वो ग्लोबल सोल्यूशन से हो जाता है, तो इनकी जरूरत कम पड़ती है, लेकिन आपको फिर भी पता रहना चाहिए कि लोकल फोर्स की इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है। तो मैं वापस आ रहा हूं, अब इस पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं वापस इस इक्वेशन पे कंसंट्रेट करूंगा। ठीक है, अब इस पे बताओ अननोन कौन कौन है? अननोन कौन है इस प्रॉब्लम में? सभी अननोन है फिलहाल तो। R1 अननोन है, R2 अननोन है, इधर U1 U2 U3 U4 इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ना एक बार। ऑब्टेन द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल चुके 4x4 का, वी हैव कंप्लीटेड इट। द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द नोड 3 and 4। क्वेश्चन इस बात में इंटरेस्टेड है कि थर्ड पॉइंट का, थर्ड नोड का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो U3 is unknown for us, U4 is also unknown for us, ठीक है, we have to calculate and the reaction forces, आपको रिएक्शन फोर्सेस निकालने हैं। तो रिएक्शन फोर्स, पहला रिएक्शन फोर्स क्या है? F1x, दूसरा रिएक्शन फोर्स क्या है? F2x। तो F1x is also unknown for us, F2x is also unknown for us, ठीक है। उसके बाद द फोर्सेस इन ईच स्प्रिंग, ईच स्प्रिंग का मतलब हो गया, अब ये लोकल पे बात चली गई। ईच स्प्रिंग से मतलब है लोकल, हर स्प्रिंग में कितना कितना फोर्सेस है ना। तो इसके लिए फिर हमको लोकल इक्वेशन यूज करनी होगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें क्वेश्चन में निकालनी है। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करेंगे, है ना, और रिएक्शन फोर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इसको देखिए जरा। तो चलिए मैं इसकी जरा इंक क्लियर कर दूं पहले। यस, तो हमारे पास ग्लोबल इक्वेशन तो लिखी हुई है। तो अब ग्लोबल इक्वेशन जो हमारे पास नोटेड है, ये वाली ग्लोबल इक्वेशन, इस ग्लोबल इक्वेशन में मुझे क्या करना है? आई हैव टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, to apply the boundary conditions. So what are the boundary conditions in our problem? ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन से मतलब होता है क्या आपको किसी जगह पर U1 दिया हुआ है, U2 दिया हुआ है, क्या आपको इनमें से कुछ पता है क्वेश्चन में? इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस, आर यू नोइंग दैट बाउंड्री कंडीशंस? और क्या आपको इनमें से फोर्सेस में से कुछ पता है? तो देखो ये जो 25,000 जो हमने लिखा है, ये एक तरह की बाउंड्री कंडीशन है, बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। अब U1 U2 U3 U4 इसके बारे में देखो, तो यहाँ आओ, ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट है U1, बिकॉज दिस सपोर्ट इज फिक्स्ड, दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। रिएक्शन जनरेट होगी, फोर्स जनरेट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा, बिकॉज इट इज ए फिक्स्ड सपोर्ट। So this is my boundary condition, BC. U2 भी 0 हो जाएगा फिर सर। Very good, very good, very good. Similar way, because this is also fixed. So U2 equal to 0 is also my boundary condition. ठीक है, और थर्ड बाउंड्री कंडीशन होती है F4x equal to 25,000 न्यूटन। ये मैं ऑलरेडी पहले ही पुट कर चुका हूं, तो अब इन बाउंड्री कंडीशंस को मुझे पुट करना है। तो ग्लोबल में देखो मैं गया,
U1 मैं जरा कलर चेंज कर लूं बाउंड्री कंडीशन पुट करने के लिए। पहली बाउंड्री कंडीशन मैंने पुट कर दी यहाँ पर, तो U1 इक्वल टू 0, तो U1 को हटा के मैंने लिख दिया 0, U2 को हटा के मैंने लिख दिया 0, है ना। U3 U4 तो नहीं मालूम, बस बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो गई। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जो वैल्यू 0 होती है उसको कहते हैं होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। क्या कहते हैं? होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। तो अब इस बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये होता है कि पहली वाली रो को आप डिलीट कर दो, बिकॉज इट इज ए होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, डिलीट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। Because it is a homogeneous boundary condition, delete the first row and the first column. And आंसर ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा करते हैं, उसका रीजन बताऊंगा अभी आपको, है ना, उसका रीजन बताऊंगा, पहले आप प्रोसेस समझिए। First row and first column is deleted because second boundary condition is also homogeneous. So I will delete the second row and second column. and second column. Very good. And second row and second column, and I will write the remaining things. So remaining things is written as, what is the things remaining over here? 0, 25,000. 0 and 25,000. 0, 25,000. Very good. Equal to, what is the remaining things here? 600 minus 400. Only 600 minus 400 minus 400 and 1,000. And what is the remaining things here? U3 U3 and U4. U3 and U4 only. ठीक है? By here you will get two equations. 600 U3 minus 400 U4 equal to 0. 600 U3 minus 400 U4 equal to 0. And minus 400 U3 plus 1000 U4 equal to 25,000. This is equation 1. This is equation 2. Two unknowns U3 and U4. Two equations. They can be solved mathematically with the help of elimination method. तो इनको सॉल्व करके जरा बताओ U3 कितना आ रहा है और U4 कितना आ रहा है। 2 मिनट का समय, जल्दी से सॉल्व करें। अलजेब्रिक इक्वेशन है और ऑक्टेम में तो बड़ा आसान हो जाएगा। ऑक्टेम में तो कुछ करना ही नहीं है, ये सारी प्रोसेस ऑक्टेम में तो इसका इनवर्स निकाल दो, बस इस वाले का इनवर्स निकालो और मल्टीप्लाई इससे कर दो। 2 मैट्रिक्स बनाओ, एक ये वाला बनाओ, एक ये वाला बनाओ, इसका इनवर्स निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करो, U3 U4 आ जाएगा। वेरी इजी। तो इसको सॉल्व करके जरा बताइए कि U3 कितना आ रहा है और U4 कितना आ रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट रो क्यों डिलीट करी, फर्स्ट कॉलम क्यों डिलीट किया, सेकंड रो क्यों डिलीट करी, सेकंड कॉलम क्यों डिलीट किया। ठीक है, तो जरा U3 U4 को सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? या मैं ही सॉल्व करूं, बताएं। इफ यू आर डूइंग देन आई एम वेटिंग फॉर द आंसर बिकॉज these two are only two equations in the two unknowns. Sir, I cannot solve right now, sir. क्या कह रहे हैं? You are? Sir, I am not able to solve right now. You are not able to solve. Okay, okay. So I will solve. No problem. तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। 600 U3 minus 400 U4 है ना, मैं इनको यहाँ लिख लेता हूँ। 600 U3 minus Sir, we will solve this in Octave because this we know that we will form two equations, then we will solve नहीं like नहीं वो that. तो कर ही सकते हैं, बट हमें एक बार मैनुअल मेथड भी तो समझनी है। 200 की तो आनी चाहिए। 400 U3 plus
and U4 is 25. ठीक है, this is equation 1, this is equation 2. अब यहां से U3 U4 में एक रिलेशन मिल जाएगी, उसको पुट कर देना इधर। तो ये हो गया पहले वाले इक्वेशन से, देखो 600 U3 इक्वल टू 400 U4, 0 0 0 0 कैंसिल, तो U3 बराबर हो गया 2/3 U4। ठीक है, इस U3 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो -400 2/3 U4 प्लस 1000 U4 इक्वल टू 25,000। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से गई, 2 जीरो ये वाली गई, 2 जीरो ये वाली गई, 4 2 जा 8, so it is -8/3 U4 plus 10 U4 equal to 250 only. U4 कॉमन हो गया, 10 - 8/3, 10 3 जा 30, 30 - 8 22, so it is 22/3 U4 is 250, so U4 equal to 250 into 3 divided by 22, 2 11 ja 22, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 5 ja 10, so it is 375 divided by 11. Unit is millimeter. U4 की वैल्यू आ गई 375/11 मिलीमीटर। इतने मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नोड नंबर 4। It is the displacement of node number 4, and by putting this U4 into this, you can find U3, 2/3 into 375/11, 3 1 ja 3, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 5 ja 15, so it is 250/11 millimeter. Why the answer is in millimeter, not meter? Because the stiffness are given in millimeter, Newton per millimeter. है ना? So our units are for Newton for forces and millimeter for the length, width or displacement, etc. for the length. So this is solve हो गया, समझ में आ गया? जो पूछ रहे थे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे, सिंपल सॉल्यूशन। यस सर, सिंपल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सॉल्व हो गया है ना। तो देखिए अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। We have completed the global, first part is completed. The displacements of the node 3 and 4 also we have completed. U3 की वैल्यू 375/11 mm आ गई और U4 की वैल्यू 250/11 mm आ गई। दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट है रिएक्शन फोर्सेस। अब रिएक्शन फोर्सेस को कैसे निकालें? तो वापस उसी इक्वेशन पे जाएंगे जो हमारी ग्लोबल इक्वेशन है, F बराबर K डेल्टा है। आप कहो तो मैं उस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से, है ना? मैं लिख लेता हूँ R1 R2 0 25,000 इक्वल टू K को जरा बोल दो 200 0 -200 0, सेकंड लाइन बोलिए 0 600 0 -600। चेक कर लेना एक बार कोई वैल्यू गलत तो नहीं। थर्ड रो मेरे पास है -200 0 600 एंड -400, और फोर्थ रो मेरे पास है 0 -600 -400 और 1000, और लास्ट वाली जो वेक्टर है वो मेरे पास है U1 यानी कि 0, U2 यानी कि 0, ये मेरी बाउंड्री कंडीशन है दोनों, और U3 375/11 ये मैं निकाल चुका हूं, और U4 250/11 ये मैं निकाल चुका हूं। ठीक है, लेकिन इससे पहले अभी रिएक्शन फोर्स निकालने से पहले मैं जरा ये एक्सप्लेन कर दूं कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट क्यों किया था और सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट क्यों किया था। किसी का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्यों हमने ऐसा। देखिए रीजन ये है, ये होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। तो अब देखो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को इस वेक्टर के साथ, तो 200 इंटू 0 0 ही आएगा। यहाँ कोई भी वैल्यू होती दैट इंटू 0 0 ही आएगा। तो पहली रो में इस एलिमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा, इस एलिमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो नलीफाई हो गए ना इनके 0 होने की वजह से।
हाँ सर, फर्स्ट रो और सेकंड रो तो हमें कंफर्म है कि पूरी जीरो हो जाएंगी। हाँ, ये उनका कोई ये effect नहीं नलीफाई आएगा। हो गए। अब सेकंड रो का तो जब first- मल्टीप्लिकेशन हाँ। होगा तो ये भी नलीफाई हो गए, ये भी नलीफाई हो गए, ये भी नलीफाई हो गए, है ना। दिस आल्सो नलीफाइज, 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 दैट्स व्हाई दिस कॉलम्स आर डिलीटेड। सर पर लेकिन जो हमारा हाँ। 1,3 एलिमेंट है, 1,3 एलिमेंट, हाँ, आप ये कह रहे वो हैं सर, कि ये तो नलीफाई नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप, है ना। हाँ ये नहीं हुआ, उसके बाद वाला नहीं हुआ, उन दोनों हाँ, के तो उसका नीचे वाला समझिए, नहीं हुआ। देखो ये नलीफाई नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन ये किस पे इफेक्ट डालेगा? R1 पे डालेगा। ये U3 पे इफेक्ट तो नहीं डालेगा। हमने तो U3 U4 को निकाला है ना। U3 U4 तो थर्ड और फोर्थ रो में कंसीडर हो रहे हैं, और हाँ सर, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 हम R1 कैलकुलेट R2 नहीं पे कर तो रहे अभी हैं। हम कंसंट्रेट कर ही नहीं रहे, है ना। तो दैट्स व्हाई ये वाली जो चीजें हैं ये R1 और R2 को तो इफेक्ट करेंगी, लेकिन U3 U4 पर इनका इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो सर हम कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट रो एंड सेकंड रो जो है वो R1 R2 के लिए कैंसिल करी है, और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है वो हमारी बाउंड्री कंडीशन की वजह से कैंसिल हुई है। नहीं, देखो R1 R2 के लिए तो हमने सिर्फ ये किया है, ये वाला पार्ट। सर वो तो सही बात है, पर लेकिन सर जीरो और -600 ये नलीफाई हो गया, क्योंकि हम R1 R2 में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अब ये वाले जो पार्ट हैं ये तो U3 U4 में वेरी करते हैं, तो ये नलीफाई क्यों हो गए? क्योंकि इन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो ये मेथड है कि वो जब भी कोई होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन आएगी तो यू कैन डिलीट दैट पर्टिकुलर रो एंड दैट पर्टिकुलर कॉलम, एंड देन यू कैन फाइंड द अननोन डिस्प्लेसमेंट्स। तो ये मेथड जो है ये अननोन डिस्प्लेसमेंट्स को फाइंड करने के लिए है, फोर्सेस को फाइंड करने के लिए नहीं है। इट इज द मेथड टू फाइंड द अननोन डिस्प्लेसमेंट, एंड वंस द डिस्प्लेसमेंट्स आर अवेलेबल है। अब वापस वहीं आ जाओ, रीजन समझ में आ गया ना आपको कि हमने क्यों डिलीट किया। अब इसमें देखो, अब हमसे क्वेश्चन क्या निकलवा रहा है कि भाई रिएक्शन फोर्स बताओ। तो रिएक्शन फोर्स के लिए R1 इज द रिक्वायरमेंट, R2 इज द रिक्वायरमेंट। ग्लोबल इक्वेशन आपके पास है ही है, तो अब R1 मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो R1 इक्वल टू 200 इंटू 0, तो ये 0 ही हो गया, 0 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, माइनस 200 इंटू 375/11 प्लस 0 इंटू 250/11 ये भी 0 हो गया। तो जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? माइनस 200 इंटू 375/11 कितना आ रहा है? माइनस 6818.18, 6818.18 न्यूटन, because it is a reaction force. So R1 is over. Similarly, R2 can be found in the same fashion. R2 के लिए सेकंड रो का यूज करेंगे, तो 0 की वजह से 0 इंटू 0 0, 600 इंटू 0 0, 0 इंटू 375/11 0, और माइनस 600 इंटू 250/11। तो पहला 0, दूसरा पार्ट 0, तीसरा पार्ट 0, माइनस 600 इंटू 250/11। इसको सॉल्व करिए, माइनस 600 इंटू 250/11 इक्वल टू कितना आया बताओ? यस, 13,636, 13,636 .36 इतना ही आ रहा है ना, 0.36 सर। करेक्ट। तो ये इस तरह से हमारी जो है रिएक्शन भी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, 200 ये हमने गलत कर दिया है क्या? 200 नहीं था, ये कितना था? 200 ही था, है ना। 200 इंटू 375/11 6818, 13,636, बिल्कुल सही, करेक्ट। तो दिस थर्ड पार्ट इज आल्सो ओवर। ठीक है, अब आता है द फोर्सेस इन ईच स्प्रिंग। तो इसके लिए हमको यूज करनी पड़ेगी लोकल इक्वेशन। ठीक है, लोकल इक्वेशन मैंने आपको बताई दी है। फर्स्ट एलिमेंट के लिए लोकल लिखेंगे, उसके लोकल फोर्स निकल जाएंगे, सेकंड के लिए सेकंड के निकल जाएंगे, थर्ड के लिए निकल जाएंगे। उसी तरह वो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो उसका सॉल्यूशन इजी है, यू कैन डू इट ऑफ योर ओन।
अब मैं जरा ये बताना चाहता हूं, क्या ये पूरा स्प्रिंग सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? यस और नो बताइए। क्या ये पूरा स्प्रिंग मॉडल, स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग असेंबली सिस्टम इज इट इन इक्विलिब्रियम? यस और नो? नो सर। है? दो साइड से तो सर ये फिक्स है। हाँ, सर एक पॉइंट पे ये पूरा इलोंगेट हो जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम में ही आ जाएगा सर। नहीं इलोंगेट तो हो ही रहा है। देखो 375/11 को जरा देखो सॉल्व करो। 375/11 आपका आ रहा है 34.09। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट 34 मिलीमीटर आगे जा रहा है, 34 मिलीमीटर। अब ये वाला पॉइंट कितना आगे जा रहा है? भले ही इसमें कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट आएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया था? U3 250/11 है ना। तो 250/11 करके देखो कितना आता है। 250/11 22.72। तो ये 22.72 मिलीमीटर आगे जाएगा। ये इतना आगे जाएगा, ये इतना आगे जाएगा, ये वाला कुछ नहीं जाएगा, तो जीरो है। इसका तो बाउंड्री कंडीशन ही है कि फिक्स्ड है। U1 जीरो है, U2 जीरो है, लेकिन U3 U4 में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक में 22 पॉइंट समथिंग और एक में 34 पॉइंट समथिंग। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये पूरा ग्लोबल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं? इसका आंसर दो, यस या नो। और यस तो क्यों यस और नो तो क्यों नो, ये बताओ। सर मैं टाइम के हिसाब से दूंगा सर। स्टार्टिंग में जब हो रहा है तो फुल इलोंगेट हो रहा है, फिर बाद में जब अपना इलोंगेशन की पोजीशन पे आ जा रहा है तब इक्विलिब्रियम में आ जाता है सर। तब इक्विलिब्रियम में आ रहा है ना। आफ्टर द इलोंगेशन इट विल बी सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना। गुड, तो आंसर इज यस। लेकिन इस यस को प्रूफ कैसे करोगे? तो प्रूफ करने के लिए आप सारे फोर्सेस को जोड़ दो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। होता है कि नहीं? यस सर। तो हम सर कह देंगे ऑल ग्लोबल फोर्सेस इक्वल टू सॉरी ग्लोबल फोर्स इक्वल टू ऑल लोकल फोर्सेस। नहीं, समेशन ऑफ ऑल द ग्लोबल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। समेशन ऑफ ऑल द ग्लोबल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। तो जरा चेक करके देखो कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ R1 की क्या वैल्यू है? R1 की वैल्यू ये है -6818। ध्यान से देखो, 6818.18। R2 की वैल्यू क्या है बताओ? वो भी माइनस में ही है, -13,636.36। और इस पे कोई फोर्स है नहीं, तो ये तो जीरो फोर्स है नोड नंबर 3 पे। नोड नंबर 4 पे फोर्स है 25,000 का, तो प्लस 25,000। जरा जोड़ के देखो क्या ये जीरो आ रहा है? सब मिला के चेक करो। यस, जोड़ के देखो। सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है बताओ? सारा प्लस करके बता दीजिए कितना आ रहा है आंसर। जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? आप लोग प्लस नहीं, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हुए हैं क्या? मैं ही जोड़ के देखूं? देखो 25,000 -6,818। ठीक है, पॉइंट को छोड़ दो फिलहाल, लगभग आइडिया मिल जाएगा। -13,636। नहीं आ रहा सर। 4,540 आ रहा है आपका। लेकिन यस Yes, sir. सिस्टम में है
तो जीरो आना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप जरा सा ये चेक करो, हो सकता है हमने यही वैल्यू गलत लिखी हो। 200 इंटू 375/11 सॉल्व करो, हो सकता है ये 6818 ना आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो, चेक करो एक बार। 200 इंटू 375/11 कितना आ रहा है? 6818। ठीक है, U3 और U4 कहीं हमने वैल्यू इंटरचेंज तो नहीं करनी? हाँ, हम इंटरचेंज कर गए। हमारा U4 आया था 375/11, चेक करो अगली स्लाइड पे जाकर। ये देखो हमारा U4 कितना आया था, चेक करो कहां पर है, ये रहा। 375/11 U4 था या U3 था, बताओ? U4 था, और हमने उसे U3 मान लिया वहां पे, और जो U3 था उसे U4, इंटरचेंज हो गई है वैल्यूज, है ना। तो इसको करेक्शन करिए, यहाँ पे आइए, डू इट करेक्शन। तो यहाँ जो 375 की जगह तो 250 होगा, और जो 250 है उसकी जगह 375 होगा। तो ये वैल्यू बदल जाएंगी दोनों, इन दोनों वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट करो। 200 इंटू 250/11, ये हमारा आ गया 4545। ठीक है, 4545.45, ये तो आ गई हमारी R1 माइनस में, और R2 हमारी आ गई 600 इंटू 375/11, 20,454 माइनस 20,454.45। अब जरा जोड़ के देखो तीनों को जीरो आ रहा है कि नहीं, बताओ बताओ, तीनों को जोड़ के देखो। अब तो मोटा मोटा मुझे भी दिख रहा है कि जीरो आ जाएगा। देखो 20,454 और 4,000, 24,000 है ना, 25,000 हो गया, 25,000 प्लस जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो आ रहा है ना, गुड। तो बिकॉज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, इट मींस द टोटल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल से बात आपको समझाने की कोशिश करी है एफईएम मेथड को। अब इसको हम ऑक्टेव पे ऑटोमेट कर सकते हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी उस पे प्रोग्राम के थ्रू। तो अब मैं जरा सा असाइनमेंट डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, है ना। इस पे आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो ये असाइनमेंट है, सब लोग पढ़िए जरा। फॉर द स्प्रिंग असेंबलेज शोन इन फिगर, ऑब्टेन द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। आपको ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालना है। तो जरा फिगर को देख के बताओ, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज कितने बाई कितने का होगा? एनीवन? सर 5 इंटू 5, है ना, बिल्कुल सही है। तो देखो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं? पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। एलिमेंट आर एक नोड इसमें सर जो डिफ्लेक्शन दिखा के गैप बना रखा है, ये वाला नोड। हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस वाले पार्ट पे देखो क्या हो रहा है। ये जो 5 नंबर नोड है, इसमें एक फोर्स लग रहा है F5x, ये ग्लोबल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है मैक्सिमम? भाई इसको खींचोगे तो मैक्सिमम ये इस सपोर्ट तक आ सकता है ना, इससे आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगी हुई है ना। यदि फिक्स सपोर्ट ना होती तो ये और भी आगे जा सकता था। तो यहाँ पे डेल्टा की लिमिटेशन है, डेल्टा का कंस्ट्रेंट है, ये एक तरह की बाउंडेशन है कि डेल्टा की वैल्यू, मतलब नोड नंबर 5 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा से ज्यादा नहीं हो सकती, इट विल बी डेल्टा ओनली। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो अब देखो पहले एलिमेंट की स्टिफनेस कितनी है, K, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लोबल लोकल K माइनस K माइनस K K, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, K1 की वैल्यू हो जाएगी। अब बताओ इसके लिए कितनी हो जाएगी, सेकंड वाले की, इसका भी K है तो सेम हो जाएगा, ये भी K2 भी सेम हो जाएगा, इसका भी K है, K3 भी सेम, K4 भी सेम, K5 K4 4 ही है। तो सर सारी इसमें 200 200 हो जाएंगी, 200 माइनस 200। 200 नहीं, 200 क्यों हो जाएंगी, 200 यहाँ कोई दे थोड़ी रखा है आपको, ऊपर तो दे रखा है क्वेश्चन में द प्रिंसिपल द स्प्रिंग। अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है, यस तब तो 200 हो जाएंगी बिल्कुल। हाँ, सही है, द स्प्रिंग डेल्टा भी दे रखा है। इक्वल टू K इक्वल टू 200, यस
तो k की वैल्यू 200 दे रखी है, तो सभी के लिए 200 200 हो गई, तो 200 माइनस 200, और फिर उन चारों को हम क्या कर देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4, तो हमको मिल जाएगा साइज कैपिटल K, और उसको उसी तरह से आप ग्लोबल बना, जैसे अभी बनाया है उसी तरह से बनाना। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट हो जाएगा सबसे, ग्लोबल स्टिफनेस वाला। हाँ सर, कैपिटल की तो निकाल लेंगे सर। बस 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 आराम से निकाल, तो ये असाइनमेंट उसी तरह से है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नोड 2 to 4, नोड नंबर 2 का डिस्प्लेसमेंट U2, इसका डिस्प्लेसमेंट U3, इसका डिस्प्लेसमेंट U4, और U5 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा। ये आपकी बाउंड्री कंडीशन हो गई। U5 का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा। इट इज ए बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि डेल्टा से अधिक नहीं हो सकता। सर डेल्टा की वैल्यूज दे रखी है ना मुझ पर। हाँ दे रखी तो अच्छी बात है। मैं वो डेल्टा इज 20 mm, so U5 की वैल्यू हो गई 20, so U5 इक्वल टू 20 इज योर बाउंड्री कंडीशन। और U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज इट इज ए फिक्स सपोर्ट। U5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज इट इज ए, नहीं U5 तो 20 हो जाएगा, यहाँ तो कोई नोड है ही नहीं, ये तो यहाँ से हटके यहाँ पहुंच रहा है ना। तो बस आपकी बाउंड्री कंडीशन हो गई U1 इक्वल टू 0, U5 इक्वल टू 20। ठीक है, अब ग्लोबल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल फोर्स क्या होगा, रिएक्शन 1। यहाँ पे ग्लोबल फोर्स क्या होगा नोड नंबर 2 पे, बताओ एनीवन। R2 पॉइंट 2 का ग्लोबल फोर्स कितना होगा, कुछ दिया ही नहीं है। 0 2 3 4 0 होंगे। पॉइंट 3 का ग्लोबल फोर्स क्या होगा, 0। 0 पॉइंट 4 का ग्लोबल फोर्स क्या होगा, 0। और पॉइंट 5 का ग्लोबल फोर्स क्या होगा, यहाँ पे सर इसका तो दे रखा है F5x। यहाँ तो फोर्स लगाया गया है ना, फोर्स लगाने की वजह से ही तो इसमें एक्सटेंशन हो रही है। और जब इसमें एक्सटेंशन हो रही है तो 4 में भी एक्सटेंशन हो रही है, 3 में भी एक्सटेंशन हो रही है, 2 में भी एक्सटेंशन हो रही है, लेकिन 1 में कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द फिक्स सपोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, आप इसको कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट तक निकाल लेना है ना, फिर ग्लोबल नोड फोर्सेस वही हो गए, रिएक्शन निकाल लेना, और लोकल छोड़ देना बल्कि आप, है ना, लोकल एलिमेंट छोड़ देना। ABC 3 पार्ट कंप्लीट करके इसको अपलोड कर देना। ठीक है, मैनुअल बनाना और मैनुअल ही अपलोड कर देना। ठीक है, कॉपी में और सर यदि आप manual इसका नहीं करना है। ऑक्टेव बना लें तो ऑक्टेव भी साथ में डाल देना, अदरवाइज मैनुअल तो कर ही देना। तो ये हमारा असाइनमेंट हो गया। अब मैं वापस आ रहा हूँ अपनी पॉइंट्स पर, क्या बाकी है तो शुरू से देख लेते हैं। देखो, क्विक रिव्यू हम कर चुके हैं, क्विज पर डिस्कशन हमारी हो गई है, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमने निकाल लिया है ना, बहुत आराम से। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स यूजिंग ऑक्टेव, ये हमने नहीं किया अभी। ऑक्टेव पर जाकर के वहां पे हमको लूप का यूज करके हम इस ग्लोबल को कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू इट, है ना। आप लोग ट्राई करिए इसको, आपसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लूप आप समझ ही चुके हैं। तो अब लूप, जैसे वो लूप आपको आता है तो लूप का इसमें आप क्या करिए, अप्लाई करिए। यू अप्लाई योर लूप नॉलेज इन फाइंडिंग द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, और वो लॉजिक आपका ऐसा होना चाहिए कि वो लॉजिक केवल 4x4 पे ही काम न करे, वो 4x4, 5x5, 20x20 सारे पे काम करे। इस तरह का लॉजिक लूप से बनाइए। टेस्ट केस एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है, स्प्रिंग असेंबलीज, है ना, जो हमारा सब कुछ कैलकुलेट हो गया है, डिस्प्लेसमेंट भी, रिएक्शन फोर्सेस भी। सर लूप ही होगा सर, इसमें फेल्स नहीं होंगे। लूप से आसान होगा, क्योंकि कई बार भाई देखो 20 एलिमेंट है। नहीं मतलब लूप के अंदर ही फेल्स तो नहीं होंगे सर। लगा सकते हैं, हाँ लगा दीजिए, यदि आपको जरूरत ऐसा लगता है कि लूप के अंदर इफेल्स की रिक्वायरमेंट है, जरूर लगाइए। आप फ्री हैं कुछ भी लगाने के लिए, तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है ना। बस आपका आउटपुट आना चाहिए, आपका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरेट होना चाहिए। आप कोई भी लॉजिक लगाइए, और कोडिंग स्मॉल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा कोड लिख दिया, है ना। किसी काम को 3 लाइन के कोड में हो सकता था, मान लो 2 लूप की हेल्प से हो सकता था, और आपने 6 लूप बना दिए उसी में, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव कोडिंग। मिनिमम कोडिंग से, मिनिमम लूप से आप उसको एग्जीक्यूट करें। सो फोर्स एनालिसिस वी हैव डन इट ना, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस दैट आल्सो वी हैव डन इट, सॉल्यूशन विद एफईएम कांसेप्ट कर ही लिया है। वेरिफिकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्पिन मॉडल, बताओ ये हमने किया है कि नहीं किया है? अभी जोड़ के किया तो हाँ जोड़ के किया था। सो आवर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम,
प्रैक्टिकल है। असाइनमेंट 6 आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, ये हमने आपको असाइनमेंट दे दिया है और ये पीपीटी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। सो इट इज सफिशिएंट फ्रॉम, और एक्सेल वाला काम और रह गया है ना, जो एक्सेल में डाटा लेना है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक्सेल वाली ये चीजें जो है और ये ऑक्टिव वाली जो ग्लोबल स्टिफनेस वाली जो चीजें हैं, ये मैं आपको, अब मेरा एक ही लेक्चर और बाकी है जो 3 तारीख को है, लास्ट वाला। लास्ट वाला है ना, उस लेक्चर में हम इसको कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब गूगल फॉर्म में आप असाइनमेंट अपलोड कर दें अप टू 30 तारीख तक, है ना, 30 लास्ट डेट है, 30/7/2021 तक आप सारे असाइनमेंट अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज और करिएगा, एक आपके पास फॉर्म और आएगा, दैट इज द फीडबैक फॉर्म, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फॉर्म है, उसको भी फिल कर देंगे सर। मैं ज्यादा समय नहीं लगेगा फीडबैक फॉर्म में, आपका हार्डली 5 मिनट भी आप लगाएंगे तो पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बस आपको सर वो सर हम जो बीम स्ट्रेस लगाने वाला वो कर रहे हैं, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। थे कि कहाँ स्ट्रेस लग रहा है वो नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ वो जो स्ट्रेस वो और बीम अब वाला वो था, देखो, वो देखो, वो कुछ नहीं है, देखो वो ऐसा है, मान लो देखो ये एक बीम है, सर ये पीपीटी शेयर कर देना सर, ऐसे ही हाँ इसको हम शेयर कर देंगे। अब देखो बीम को हम क्या करते हैं, बीम को हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, हो गया डिवाइड। अब इस बीम के लिए जो स्टिफनेस मैट्रिक्स होती है, वो जैसे स्प्रिंग के लिए क्या होती है बताओ जरा, K माइनस के माइनस के, यही होती है ना। अब बीम के लिए, इसके लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होगी बताओ जरा, क्या होगी एनीवन। देखो आपने ये पढ़ा है हुक्स लॉ से, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस। हाँ फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा L बाई L, है ना। तो यहां से क्या निकल के आता है, P बाई A इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L बाई L, ये आता है। अब P बाई डेल्टा L निकाल लो, P बाई डेल्टा L क्या हो जाएगा बताओ जरा, EA बाई L हो जाएगा ना। अब देखो P बाई डेल्टा L क्या है, P मतलब फोर्स, डेल्टा L मतलब डिफ्लेक्शन, elongation. So force per unit elongation, it is the stiffness. So it is the stiffness K is EA by L, ठीक है। तो बस अब हमारी स्टिफनेस हो जाएगी EA by L माइनस EA by L माइनस EA by L, EA by L, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, E की वैल्यू दे देते हैं कि साहब ये 200 गीगा पास्कल है। एरिया के लिए वो डायमीटर दे देते हैं कि बीम का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया निकाल लोगे पाई बाय 4 5 स्क्वायर से। एल वो दे देते हैं कि पूरी लेंथ मान लो 6 मीटर है और आपने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो पहली वाली लेंथ क्या हो गई 2 मीटर, तो एल की वैल्यू आपकी 2 हो गई। ई पता है, ए पता है, एल पता है, इसका मतलब आपको स्टिफनेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट पता है। सिमिलरली आपको स्टिफनेस ऑफ सेकंड एलिमेंट पता है, स्टिफनेस ऑफ थर्ड एलिमेंट पता है, तीनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको ग्लोबल स्टिफनेस पता है, ठीक है। उसके बाद वही सारा प्रोसीजर वही है, F इक्वल टू के डेल्टा। तो जिस कंसेप्ट से हमने स्प्रिंग को सॉल्व किया है, विद द सेम कंसेप्ट वी कैन सॉल्व द बीम प्रॉब्लम आल्सो। तो मेरे ख्याल से एक हल्का सा आइडिया मैंने दे दिया, समझ में आ गया होगा आपको, जिसने भी पूछा था बीम के संबंध में, ठीक है। तो मैं अब इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। एंड सर वो एक्सेल वाला, एक्सेल फाइल, हाँ एक्सेल फाइल वाला लास्ट क्लास में करेंगे उसको, है ना, वो रिवीजन वाली क्लास में। हाँ, सर आज का जो असाइनमेंट है वो आपको मेल करना है कि उसी पर अपलोड करना है? उसी पर करना है, उसी में एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा, आप उसमें बढ़ा दो। शाम तक बना लीजिए, शाम तक हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे उसमें। पीपीटी Okay, शेयर कर देना सर। हाँ पीपीटी शेयर कर देंगे, पीपीटी रिकॉर्डिंग दोनों ही कर देंगे शेयर, ठीक है। तो आपको रोजाना की पीपीटी, रोजाना की रिकॉर्डिंग हमने शेयर की है ग्रुप पर, आपको मिलती रहती है ना, तो ये भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फीडबैक में आपको 5 मिनट का समय लगेगा, उसमें आपको केवल सिलेक्शन करनी होगी, है ना,
कोई भी जैसे टॉपिक पॉइंट है तो उस पर आपको 1 से लेके 5 का स्केल होगा, है ना, सबसे ज्यादा के लिए 5 पॉइंट स्केल। ये तो पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसी के बाद फिर नहीं, वो फीडबैक फॉर्म आपके, अब कोर्स मतलब ये लगो कोर्स लगभग खत्म सा ही है। कितने लेक्चर आपके रह गए हैं? हार्डली 3 या 4 लेक्चर आप। 3-4 रहेगा सर। हाँ, तो कोर्स मतलब एक तरह से बाइंड अप हो रहा है सर उनका से कोर्स एक किया है ना हमने। हैं? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर जो बाहर के एलुमनाई है सर, उनका तो हमने सिर्फ एक कोर्स लिया है ना, तो उनका पता ही नहीं कैसे। हाँ, तो फिर थोड़ा वेट कर लेना आप। जैसे कल उनका लेक्चर है व्याख्या का, है ना, 2 लेक्चर व्याख्या के हो जाएंगे और 1 लेक्चर और अनुदीप जी का हो जाएगा। उसके बाद आप फीडबैक दे देना आराम से, कोई इसमें इशू नहीं है। आप अपनी इच्छा से दे देना, 30 तारीख तक दे देना, है ना, लास्ट 31 तक भी दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट फीडबैक आप कंप्लीट अपना फॉर्म 5 मिनट लगा के कंप्लीट कर दीजिएगा, राइट? ठीक है सर। हाँ, वो गूगल फॉर्म भी हम आपको अलग से एक भेज देंगे व्हाट्सएप पे या मेल पे, जैसे भी आएगा। हो सकता है वो आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से आए, तो उसको आप कंप्लीट कर लेना। उसके लिए समय होगा आपके पास 30-31 तक, आराम से कर लीजिएगा, कोई ऐसी जल्दी थी उसमें। बट असाइनमेंट को आप 30 तक जरूर कर देना। तो चलिए, मैंने से स्टॉक शेयर किया। चैट विंडो में मैं देख लूं किसी ने कुछ लिखा है। सर असाइनमेंट 6 कहाँ सबमिट करना है? ठीक है, गूगल फॉर्म में करना है, वहीं एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी गूगल फॉर्म में। तो थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, कोई क्वेरी हो तो बताइए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।